ये सुन्दराकारं सदैकः प्रियदर्शनम् अज्ञाननाशकं देवं सद्गुरुं मुरलीधरम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं विमानतोऽस्मि यस्वानुभावम् अखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् गोपिका जीवन स्मरणं गोविंद गोविंद सद्गुरुनाथ महाराज की जय राधे राधे குருநாதனுடைய கிருபையினால ஸ்ரீமத் பாகவத மகாத்மியம் கத்துட்டு இருக்கோம் 5 அத்தியாயம் கத்துட்டோம் இன்றைக்கு 6வது அத்தியாயம் கத்துக்க போறோம் போன அத்தியாயத்துல துந்துகாரி மோட்சம் அடைஞ்சதையும் கோகர்ணன் கோலோகம் அடைஞ்சதையும் பார்த்தோம் அதோட இந்த ஆத்மதேவ உபாக்கியானம் அப்படிங்கிறது பூர்த்தி ஆயிடுது இந்த அத்தியாயத்துல சனகாதிகள்லாம் மேலையும் நாரதரிடத்துல ஸ்ரீமத் பாகவத சப்தாகத்துக்கு என்னெல்லாம் விதிகளை அனுசரிக்கணும் அப்படிங்கறத விஸ்தாரமா எடுத்து சொல்றா எந்தெந்த மாதங்கள்லாம் உகந்ததுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கோ அந்தந்த மாதங்கள்ல தான் சப்தாகம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நம்ம வீட்டுல ஆத்துல ஒரு கல்யாணம் பண்ணோம்னா எப்படி எல்லாரையும் அழைச்சு பண்ணுவோமோ அது போல பண்ணணும் இந்த சப்தாகத்தை அப்படின்னு சொல்றா நம்ம கையாலேயே கடிதம் எழுதி எல்லாரையும் அழைக்கணும் முக்கியமா ஸ்திரீகள் குழந்தைகள் அவளாம வந்து கலந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா தேசத்துல இருக்கக்கூடிய பக்தர்களையும் இந்த ஒரு ஆச்சரியமான 7 நாள் நடக்கக்கூடிய இந்த சத்சங்கத்துக்கு வந்து பாகவத அமிர்தத்தை பருகிறதுக்கு நீங்க ஓடி வாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அழைச்சிட்டும் வரவா எல்லாருக்கும் ஏற்பாடுகள் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்றா அப்போ வந்து ஒரு புண்ணிய கஷேத்திரத்தையோ அல்லது ஒருத்தருடைய வீடையோ தேர்ந்தெடுத்து ஒரு விசாலமான இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து அதை நல்லா சுத்தப்படுத்தி அங்க வந்து அழகா புஷ்பங்கள்னாலையும் மாவன தோரணங்கள்னாலையும் வாழை கன்றுகள்னாலையும் அலங்காரம் பண்ணி ஒரு மேடை அமைச்சு அந்த மேடையில கதை சொல்ல போறவருக்கு ஒரு திவ்யமான ஒரு ஆசனமும் அமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்றா அதுக்கப்புறமா முதல்ல சப்தாகம் நிர்விக்னமா எந்த ஒரு தடங்களும் இல்லாம நடக்கிறதுக்காக கணபதி பூஜை பண்ணி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றா அப்போ இந்த மேடை மேல பகவான் ஸ்ரீ ஹரியினுடைய ஒரு திவ்யமான மூர்த்தியோ அல்லது ஒரு படத்தையோ ஸ்தாபனம் பண்ணி அந்த மூர்த்திக்கு அழகா பூஜைகள்லாம் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணி ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றா எப்படி ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும் அப்படிங்கறதையும் அவளே சொல்றா संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगम मामुद्धर भवार्णवात् அப்படின்னு பகவானை பார்த்து ஹே பிரபு இந்த சம்சார சாகரத்துல நான் மூழ்கி இருக்கேன் நீதான் என்னை எப்படியாவது கரையேற்றணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு
அதுக்கு அடுத்ததா ஸ்ரீமத் பாகவத புராணத்தையும் பூஜை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றா. தூபம் தீபம் எல்லாம் காமிச்சு பூஜை பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணி பாகவதத்தையும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றா. ஸ்ரீமத் பாகவதாख्योऽयं பிரத்யக்ஷः கிருஷ்ண ஏவ ஹி ஸ்வீகிருதோசி மயா நாத முக்த்யர்த்தம் பவசாகரே மனோரதோ மதீயோயம் சபலः சர்வதா த்வயா நிர்விக்னேனைவ கர்த்தவ்யோ தாசோகம் தவ கேசவா அப்படின்னு இந்த ஸ்ரீமத் பாகவத புராணம்ங்கிறதே தான் பகவான் சாட்சாத் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடைய ஸ்வரூபம். பகவானே, என்னுடைய மோட்சத்தின் பொருட்டு நான் உன்னை ஸ்வீகாரம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், என்னுடைய இந்த ஆசையை நீ நிர்விகனமா நடத்தி தரணும் அப்படின்னு பாகவதத்திடத்திலையும் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறமா கதை சொல்ல போறவரையும் வஸ்திர பூஷணங்கள்லாம் கொடுத்து பூஜை பண்ணணும், அவரை சுகராவே பாவிச்சு பூஜை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றா. அவருக்கும் நமஸ்காரம் பண்ணி ஸ்தோத்திரங்கள்லாம் சொல்லணும் அப்படிங்கிறா. சுகரூப பிரபோதஜ்ஞா சர்வசாஸ்திர விசாரத ஏதத் கதா பிரகாசேன மதஜ்ஞானம் விநாசயா. சுகஸ்வரூபமாவே இருக்கக்கூடிய தாங்கள், எல்லா சாஸ்திரங்களும் நன்னா தெரிஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடிய தாங்கள், இந்த பாகவத கதைய எனக்கு எடுத்து சொல்றதன் மூலமாக என்னுடைய அஜ்ஞானத்தை நீங்க போக்கணும் அப்படின்னு அவரிடத்துலயும் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு, கதை நிர்விக்னமா நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எல்லா பக்தர்களும் சேர்ந்து பகவன் நாம சங்கீர்த்தனம் நிறைய பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி, அதுக்கப்புறமா சூரியோதயத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சு கதை நடந்துட்டே வரணும். மத்தியானம் வரைக்கும் கதை நடந்து அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் விஸ்ராமம், அதுக்கப்புறமா திரும்பவும் பாகவத கதை ஆரம்பிச்சு சூரிய அஸ்தமனம் வரைக்கும் கதை நடக்கணும் அப்படின்னு இப்படி தொடர்ந்து 7 நாட்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு உதயாஸ்தமன சப்தாகம் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற விதிகள் எல்லாம் சொல்றா. நம்ம குருநாதர் இப்போ சமீபத்துல பண்ணார் இல்லையா, அப்படிப்பட்ட ஒரு உதயாஸ்தமன சப்தாகம் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்றா. இப்ப கதை கேட்கிறவா எப்படி கேட்கணும் அப்படின்னா, உபவாசம் இருந்துட்டும் கேட்கலாம், அல்லது அல்ப ஆகாரம் பண்ணிட்டும் கேட்கலாம், இல்ல போஜனம் பண்ணிட்டும் கதை கேட்கலாம். எப்படி கேட்டா கதைக்கு அனுகூலமா இருக்குமோ அது மாதிரி கேட்கணும் அப்படிங்கிறா. ஏன் அப்படின்னா, கதை கேட்கறதுங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறதுனால. அதுக்கப்புறம் கதை கேட்கிறவா உலக சிந்தனைகளோ அல்லது குடும்ப கவலைகளையோ ஒதுக்கி வச்சுட்டு சுத்தமான ஹிருதயத்தோடும் ஒரு ஒருமுகப்பட்ட மனசோடும் கதை கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்றா. முக்கியமா கதை கேட்கும் பொழுது காமம், குரோதம், மோகம், மதம், லோபம், ஆசரன்னு சொல்றோமே, அந்த மாதிரி துர்குணங்கள்லாம் இல்லாம சத்தியம், சௌச்சம், வினயம் போன்ற நற்குணங்கள் எல்லாம் கடைபிடிச்சுட்டு கதை கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்றா. அந்த கதை கேட்கிற சமயங்கள்ல வேதத்தையோ அல்லது குருநாதரையோ அல்லது ராஜாவையோ அல்லது ஸ்திரீகளையோ நிந்த பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றா. அதுக்கப்புறமா தரித்திரத்துல இருக்கிறவாளோ அல்லது குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவாளோ அல்லது மோட்சம் வேணும்னு ஆசைப்படுறவாளோ அல்லது வியாதியில இருக்கிறவாளோ இவ யாரா இருந்தாலும் சரி, இந்த சப்தாகத்தை ஸ்ரத்தையா கேட்டா அப்படின்னா அவர்களுடைய கஷ்டங்கள்லாம் விலகி ஆசையெல்லாம் கைகூடும் அப்படிங்கறத சொல்றா. வரக்கூடிய பல பிராமணர்களுக்கு நிறைய தட்சிணைகள்லாம் கொடுத்து வரவா எல்லாருக்கும் அன்னதானம் பண்ணணும் அப்படிங்கறத சொல்லி, அப்படி சப்தாகம் முடிவடையும் பொழுது பகவத்கீதையும் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமமும் பாராயணம் பண்ணி முடிச்சுட்டு, இந்த பாகவதம் அப்படிங்கிற இந்த ரத்னத்தை நம்மளுக்கு அனுகிரகம் பண்ண குருநாதரையும் விசேஷமா பூஜை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றா. அப்படி யார் இந்த ஸ்ரத்தையா இந்த பாகவத சப்தாகத்தை பண்றாளோ அவர்களுக்கு இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதமே ஒரு கல்பத்தருவா மாறி தர்மம், அர்த்தம், காமம், மோட்சம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த 4 புருஷார்த்தங்களையும் அவர்களுக்கு வாரி வழங்கும் இந்த பாகவதமே அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறா. முடிச்சுட்டு சனகாதிகள்லாம் இப்போ பாகவத சப்தாக விதிகள் எல்லாம் சொல்லிட்டு இப்போ நாரதருக்கு முதல் ஸ்கந்தத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சு 12வது ஸ்கந்தம் வரைக்கும் உள்ள எல்லா கதைகளையும் விஸ்தாரமா எடுத்து நாரதருக்கு உபன்யாசம் பண்றா. இப்போ எந்த ஒரு உத்தேசத்துக்காக இந்த சப்தாகத்தை அவ பண்ணாலோ அது அவளுக்கு கை கூடிட்டு. ஏன் அப்படின்னா பக்தி தேவி புஷ்டியா ஆயிட்டா, அதே மாதிரி ஞானமும் வைராக்கியமும் யவனத்தை அடைஞ்சுட்டா. அதனால நாரதர் சனகாதிகளை பார்த்து சொல்றார், அவருடைய ஆசை நிறைவேறிடுது இல்லையா, அதனால சொல்றார் தன்யோஸ்மி அனுகிரகிதோஸ்மி அப்படிங்கிற, உங்களுடைய ஒரு கிருபையினால எனக்கு பகவான் ஸ்ரீ ஹரி கிடைச்சுட்டான். அப்போ நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா, எல்லா தர்மங்களையும் காட்டிலும் இந்த சிரவணம் தான் ரொம்பவும் சிறந்த ஒரு தர்மம்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன் அப்படின்னா வைகுண்டத்துல இருக்கக்கூடிய பகவான் இந்த சப்தாக சிரவணத்தினால சுலபமா நம்மளுக்கு கிடைச்சுடுறானே அப்படிங்கறத சொல்ற. அப்படி நாரதர் சொல்லிட்டே இருக்கும் பொழுதே அங்க யார் வரா அப்படின்னா, சாட்சாத் எல்லா லோகங்களையும் சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ சுக மகரிஷி அங்க வரார். அவர் வந்ததுமே எல்லாரும் எழுந்துக்கிறா. நாரதர் அவருக்கு ஆசனம் கொடுக்கிறார். பார்க்க எப்படி இருக்கார் அப்படின்னா ஒரு 16 வயசு யுவாவை போல இருக்கார். அப்பேற்பட்ட ஒரு மகா ஞானியா இருக்கார். வாக்குல பாகவத ஸ்லோகங்கள்லாம் அப்படியே உச்சாரணம் பண்ணிட்டே வரார். வந்து எல்லாரையும் பார்த்து பாகவத மகிமைகளெல்லாம் எடுத்து சொல்றார். சொல்லிட்டு மாமா முஞ்சத்தை கருகிச்சுட்டு அப்படிங்கிறார். இந்த பாகவத ரசத்தை நீங்க விடவே விடாதீங்கோ அப்படின்னு சொல்றார். ஏன் அப்படின்னா ஸ்வர்க்கத்திலயோ அல்லது கைலாசத்திலயோ அல்லது வைகுண்டத்திலயோ கூட இப்படி ஒரு ரசம் கிடைக்காது அப்படிங்கறத ஸ்ரீ சுகர் எடுத்து சொல்றார். அப்படி சுகர் சொல்லிட்டு இருக்கும் பொழுதே அங்க பகவான் ஸ்ரீ ஹரி ஆவிர்பாவமாகறான்.
தன்னுடைய அத்தியந்த பக்தர்களான பலி, உத்தவன், அர்ஜுனன் போன்ற பக்தர்களோட அங்க பகவான் ஆவிர்வாவமாகறான். உடனே நாரதர் பகவானுக்கும் ஒரு ஆசனம் கொடுத்து அமர்த்துறார். உடனே எல்லா பக்தர்களும் சேர்ந்து பகவானுக்கு எதிர்த்தாப்புல நின்று ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு நாம சங்கீர்த்தனம் பண்றா. எப்பேற்பட்ட ஒரு நாம சங்கீர்த்தனம் அப்படின்னா, பிரகலாதனும் உத்தவனுமே அங்க தாளம் வாசிக்கிறாளாம். நாரதரே வீணை வாசிக்கிறார், அர்ஜுனனே பாடுறான், இந்திரனே மிருதங்கம் வாசிக்கிறார், சனகாதிகள்லாம் ஜெயா விஜயபவா அப்படின்னு ஜெயகோஷம் பண்றா. எதிர்த்தாப்புல ஸ்ரீ சுக மகரிஷியே நின்றுட்டு அழகா பாகவதத்தை எடுத்து சொல்றார் அப்படிங்கிற ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு சத்சங்கம் இங்க நடக்கிறது. உடனே பகவான் ரொம்பவும் பிரசன்னமாகி எல்லாரையும் பார்த்து கேக்குறானா, உங்களுக்கு என்ன வரம் வேணுமோ கேளுங்க அப்படின்னு. உடனே பக்தர்கள்லாம் சொல்றா, இந்த மாதிரி எங்கெல்லாம் இனிமே சப்தாகம் நடக்கிறதோ ஸ்ரத்தையா, அங்கெல்லாம் நீ இதே மாதிரி உன் பக்தர்களோட வந்து சாநித்தியமா இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறா. உடனே பகவான் அப்படியே ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி மறைஞ்சு போயிடுறான். உடனே அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, நம்ம எங்கெல்லாம் நம்ம ஸ்ரத்தையா சப்தாகம் பண்றோமோ அங்கெல்லாம் பகவான் சாநித்தியமா இருக்கான் அப்படிங்கிறது தெரியறது. இத சொல்லிட்டு ஒரு சொல்லி சனகாதிகள்லாம் இப்படி சொல்லி முடிச்சதுமே இப்ப சௌனகர் இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்காரு இல்லையா சூத்தர் இடத்துல. அவர் வந்து ஒரு சந்தேகம் கேட்கிறார். ஸ்ரீ சுகர் பரீட்சத்துக்கு பாகவதம் எடுத்து சொன்னார். அதுக்கப்புறமா கோகர்ணனும் ஒரு சப்தாகம் பண்ணார். இப்ப சனகாதிகள்லாம் நாரதருக்கு ஒரு சப்தாகம் பண்ணா இல்லையா, அப்போ எது எது எந்தெந்த காலகட்டத்துல நடந்தது அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகத்தை கேட்கிறார். உடனே சூத்தர் அழகா சொல்ற, ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வைகுண்டம் கிளம்பி போய் கலியுகத்துல 30 வருஷம் ஆனதுக்கு பிறகு ஸ்ரீ சுகர் பாத்ரபத மாசத்தினுடைய சுக்லபக்ஷ நவமியிலேருந்து ஆரம்பிச்சு பரீட்சத்துக்கு பாகவதம் சொன்னார். அப்போ பரீட்சித் மோட்சம் அடைஞ்சு ஒரு 200 வருஷங்கள் கழிச்சு கோகர்ணன் ஒரு சப்தாகம் பண்ணார் இல்லையா, அது ஆஷாட மாசத்தினுடைய சுக்லபக்ஷ நவமியில இருந்து ஆரம்பிச்சு பண்ணார். அதுக்கப்புறமா 30 வருஷங்கள் கழிச்சு இப்ப சனகாதிகள் நாரதருக்கு ஒரு கார்த்திகை மாசத்தினுடைய சுக்லபக்ஷ நவமியில இருந்து ஆரம்பிச்சு இப்படி சப்தாகம் பண்ணா அப்படிங்கறத சொல்லி, கிருஷ்ண பிரியம் சகல கல்மஷ நாசனம் ச அப்படின்னு சொல்றார். அதாவது கிருஷ்ணனுக்கு ரொம்பவும் பிடிச்சது இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் தான் அப்படிங்கறத சொல்லி நம்மளுடைய எல்லா கல்மஷங்களையும் போக்கி நம்மளுக்கு பக்தியையும் கொடுத்து முக்தியும் கொடுக்கக்கூடியது அப்படிங்கிற. அப்போ முக்தி பாகவதத்தினால மோட்சம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு பரீட்சித்தே சாட்சி அப்படின்னு சொல்றா. சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகா ஒரு விஷயம் சொல்றா. யமன் தன்னுடைய பட்டர்களை பார்த்து அவ கையில கால பாஷத்தை வச்சுட்டு இருக்கா இல்லையா, அவளை பார்த்து யமன் சொல்றானா, பாகவதம் பிடிக்கிறவா கிட்ட ஒண்டி போயிடவே போயிடாதீங்கோ. ஏன் அப்படின்னா லோகத்துல எல்லாருக்கும் நான் பிரபு, ஆனா பாகவதம் படிக்கிறவாளுக்கோ பகவத் பக்தர்களுக்கோ நான் பிரபு இல்ல அப்படிங்கறத சொல்றான். அப்போ எல்லா சாஸ்திரங்களையும் அலசி பார்த்ததுல பாகவதத்தை போல ஒரு நிர்மலமானது, பவித்திரமானது, எல்லாருக்கும் பவித்திரமாக்கக்கூடியது வேற எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கறத சொல்றா. அதனால யாரெல்லாம் ஸ்ரத்தையா இந்த பாகவதத்தை கேட்கிறாளோ அல்லது ஸ்ரத்தையா எடுத்து சொல்றாளோ 2 பேருமே உத்தமமான கதி அடையறா அப்படிங்கறத சொல்லி இந்த 6வது அத்தியாயம் பூர்த்தியாகுது. இப்போ இதுக்கு மேல நம்ம இப்போ இந்த 6வது அத்தியாயத்தை கத்துக்க ஆரம்பிக்கலாம். இதோட பாகவத மகாத்மியம் அப்படிங்கிறது பாத்ம புராணத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த பாகவத மகாத்மியம் பூர்த்தி அடையிறது. இதுக்கு மேல நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவத புராணத்தை முதல் ஸ்கந்தத்திலே இருந்து ஆரம்பிச்சு கத்துக்க ஆரம்பிக்கும். ராதே ராதே. अथ षष्ठोऽध्यायः। कुमारावूचुः अथ ते सम्प्रवक्ष्यामः सप्ताहश्रवणे विधिम् सहायैः वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधिस्मृतः दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं पृच्छ यत्नतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत् नभस्य आश्विनोर्जौ च मार्गशीर्षः
शुचिर्नभाः मार्गशीर्षः शुचिर्नभाः मार्गशीर्षः शुचिर्नभाः एते मासाः कथारम्भे एते मासाः कथारम्भे एते मासाः कथारम्भे श्रोतॄणां मोक्षसूचकाः श्रोतॄणां मोक्षसूचकाः श्रोतॄणां मोक्षसूचकाः मासानां विप्रहेयानि मासानां विप्रहेयानि मासानां विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा तानि त्याज्यानि सर्वथा तानि त्याज्यानि सर्वथा सहायाश्चेतरे तत्र सहायाश्चेतरे तत्र सहायाश्चेतरे तत्र सहायाः च इतरे तत्र सहायाः च इतरे तत्र कर्तव्याः सोद्यमाश्च ये कर्तव्याः सोद्यमाश्चये कर्तव्याः सोद्यमाश्चये देशे देशे तथा सेयम् देशे देशे तथा सेयम् देशे देशे तथा सेयम् वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः भविष्यति कथा चात्र भविष्यति कथा चात्र भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यं कुटुम्बिभिः आगन्तव्यं कुटुम्बिभिः आगन्तव्यं कुटुम्बिभिः दूरे हरिकथाः केचित् दूरे हरिकथाः केचित् दूरे हरिकथाः केचित् दूरे च अच्युतकीर्तनाः दूरे चाच्युतकीर्तनाः दूरे चाच्युतकीर्तनाः स्त्रियः शूद्रादयो ये च स्त्रियः शूद्रादयो ये च स्त्रियः शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत् तेषां बोधो यतो भवेत् तेषां बोधो यतो भवेत् देशे देशे विरक्ता ये देशे देशे विरक्ता ये देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवाः कीर्तनोत्सुकाः वैष्णवाः कीर्तनोत्सुकाः वैष्णवाः कीर्तनोत्सुकाः तेष्वेव पत्रं प्रेष्यं च तेष्वेव पत्रं प्रेष्यं च तेष्वेव पत्रं प्रेष्यं च तल्लेखनम् इतीरितम् तल्लेखनम् इतीरितम् तल्लेखनम् इतीरितम् सतां समाजो भविता सतां समाजो भविता सतां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभः सप्तरात्रं सुदुर्लभः सप्तरात्रं सुदुर्लभः अपूर्वरसरूपैव 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 कथा चात्र भविष्यति कथा चात्र भविष्यति कथा चात्र भविष्यति श्रीभागवत पीयूष श्रीभागवत पीयूष श्रीभागवत पीयूष पानाय रसलं पटाः पानाय रसलं पटाः पानाय रसलं पटाः भवन्तश्च तथा शीघ्रम् भवन्तश्च तथा शीघ्रम् भवन्तश्च तथा शीघ्रम् आयात प्रेम तत्पराः आयात प्रेम तत्पराः
आयात प्रेम तत्पराः नावकाशः कदाचित् चेत् नावकाशः कदाचित् चेत् नावकाशः कदाचित् चेत् न अवकाशः कदाचित् चेत् न अवकाशः कदाचित् चेत् दिनमात्रं तथापि तु दिनमात्रं तथापि तु दिनमात्रं तथापि तु सर्वथा आगमनं कार्यम् सर्वथा गमनं कार्यं सर्वथा गमनं कार्यं क्षणो अत्रैव सुदुर्लभः क्षणोत्रैव सुदुर्लभः क्षणोत्रैव सुदुर्लभः एवम् आकारणं तेषाम् एवम् आकारणं तेषाम् एवम् आकारणं तेषाम् कर्तव्यं विनयेन च कर्तव्यं विनयेन च कर्तव्यं विनयेन च आगन्तुकानां सर्वेषाम् आगन्तुकानां सर्वेषाम् आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत् वासस्थानानि कल्पयेत् वासस्थानानि कल्पयेत् तीर्थे वापि वने वापि तीर्थे वापि वने वापि तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतम् गृहे वा श्रवणं मतम् गृहे वा श्रवणं मतम् विशाला वसुधा यत्र विशाला वसुधा यत्र विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत् कथास्थलम् कर्तव्यं तत् कथास्थलम् कर्तव्यं तत् कथास्थलम् शोधनं मार्जनं भूमेः शोधनं मार्जनं भूमेः शोधनं मार्जनं भूमेः लेपनं धातुमण्डनं लेपनं धातुमण्डनं लेपनं धातुमण्डनं गृहोपस्करम् उद्धृत्य गृहोपस्करम् उद्धृत्य गृहोपस्करम् उद्धृत्य गृहकोणे निवेशयेत् गृहकोणे निवेशयेत् गृहकोणे निवेशयेत् अर्वाक् पञ्चाहतो यत्नात् अर्वाक् पञ्चाहतो यत्नात् अर्वाक् पञ्चाहतो यत्नात् आस्तीर्णानि प्रमेलयेत् आस्तीर्णानि प्रमेलयेत् आस्तीर्णानि प्रमेलयेत् कर्तव्यो मण्डपः प्रोच्चैः कर्तव्यो मण्डपः प्रोच्चैः कर्तव्यो मण्डपः प्रोच्चैः कदलीखण्डमण्डितः 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 फलपुष्पदलैर्विश्वक् 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 वितानेन विराजितः वितानेन विराजितः वितानेन विराजितः चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो बहुसम्पद्विराजितः 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 ऊर्ध्वं सप्तैव लोकाश्च ऊर्ध्वं सप्तैव लोकाश्च ऊर्ध्वं सप्तैव लोकाश्च कल्पनीयाः सविस्तरम् कल्पनीयाः सविस्तरम् कल्पनीयाः सविस्तरम् तेषु विप्रा विरक्ताश्च तेषु विप्रा विरक्ताश्च
तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीयाः प्रबोध्य च स्थापनीयाः प्रबोध्य च स्थापनीयाः प्रबोध्य च पूर्वं तेषाम् आसनानि तेषामासनानि तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरम् कर्तव्यानि यथोत्तरम् कर्तव्यानि यथोत्तरम् वक्तुश्चापि तदा दिव्यम् वक्तुश्चापि तदा दिव्यम् वक्तुश्चापि तदा दिव्यम् वक्तुः चापि वक्तुश्चापि आसनं परिकल्पयेत् आसनं परिकल्पयेत् आसनं परिकल्पयेत् उदङ्मुखो भवेद्वक्ता उदङ्मुखो भवेद्वक्ता उदङ्मुखो भवेद्वक्ता श्रोता वै प्राङ्मुखस्तदा श्रोता वै प्राङ्मुखस्तदा श्रोता वै प्राङ्मुखस्तदा प्राङ्मुखश्चेद्भवेद्वक्ता 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 श्रोता चोदङ्मुखस्तदा श्रोता चोदङ्मुखस्तदा श्रोता चोदङ्मुखस्तदा च उदङ्मुखः तदा च उदङ्मुखः तदा चोदङ्मुखस्तदा अथवा पूर्वदिग्ज्ञेया अथवा पूर्वदिग्ज्ञेया अथवा पूर्वदिग्ज्ञेया पूज्य पूजक मध्यतः पूज्य पूजक मध्यतः पूज्य पूजक मध्यतः श्रोतॄणाम् आगमे प्रोक्तः श्रोतॄणामागमे प्रोक्ता श्रोतॄणामागमे प्रोक्ता देशकालादिकोविदैः 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 विरक्तो वैष्णवो विप्रो विरक्तो वैष्णवो विप्रो विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धिकृत वेदशास्त्र विशुद्धिकृत वेदशास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टान्त कुशलो धीरो दृष्टान्त कुशलो धीरो दृष्टान्त कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अति निःस्पृहः वक्ता कार्योति निःस्पृहः वक्ता कार्योति निःस्पृहः अनेक धर्म विभ्रान्ताः अनेक धर्म विभ्रान्ताः अनेक धर्म विभ्रान्ताः त्रैणाः पाखण्डवादिनः स्त्रैणाः पाखण्डवादिनः स्त्रैणाः पाखण्डवादिनः शुकशास्त्र कथोच्चारे शुकशास्त्र कथोच्चारे शुकशास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिताः त्याज्यास्ते यदि पंडिताः त्याज्यास्ते यदि पंडिताः वक्तुः पार्श्वे सहायार्थं वक्तुः पार्श्वे सहायार्थं वक्तुः पार्श्वे सहायार्थम् अन्यः स्थाप्यः तथाविधः अन्यः स्थाप्यस्तथाविधः अन्यस्ताप्यस्तथाविधः पंडितः संशयच्छेत्ता पंडितः संशयच्छेत्ता पंडितः संशयच्छेत्ता लोकबोधन तत्परः लोकबोधन तत्परः लोकबोधन तत्परः वक्त्राक्षौरं प्रकर्तव्यम् वक्त्राक्षौरं प्रकर्तव्यम् वक्त्राक्षौरं प्रकर्तव्यम् दिनात् अर्वाग्
व्रताप्तये दिनाद अर्वाग व्रताप्तये दिनाद अर्वाग व्रताप्तये अरुणोदये सौ निर्वर्त्य अरुणोदये सो निर्वर्त्य अरुणोदये सो निर्वर्त्य शौचं स्नानं समाचरेत् शौचं स्नानं समाचरेत् शौचं स्नानं समाचरेत् नित्यं संक्षेपतः कृत्वा नित्यं संक्षेपतः कृत्वा नित्यं संक्षेपतः कृत्वा सन्ध्याद्यं स्वं प्रयत्नतः सन्ध्याद्यं स्वं प्रयत्नतः सन्ध्याद्यं स्वं प्रयत्नतः कथा विघ्न विघाताय कथा विघ्न विघाताय कथा विघ्न विघाताय गणनाथं प्रपूजयेत् गणनाथं प्रपूजयेत् गणनाथं प्रपूजयेत् இந்த ஸ்லோகம் பிடிக்கும் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு தடவை படிக்கலாம் कुमाराऊचुः अथ ते सम्प्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधिम् सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधिस्मृतः दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं पृच्छयत्नतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत् नभस्य आश्विनोर्जौ च मार्गशीर्षः शुचिर्नभाः एते मासा कथारम्भे श्रोतॄणां मोक्षसूचकाः मासानां विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा सहायाश्चेतरे तत्र कर्तव्याः सोद्यमाश्चये देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यं कुटुम्बिभिः दूरे हरिकथा केचित् दूरे चाच्युत कीर्तनाः स्त्रियः शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत् देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवाः कीर्तनोत्सुकाः तेष्वेव पत्रं प्रेष्यं च तल्लेखनम् इतीरितम् सतां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभः अपूर्वरसरूपैव कथा चात्र भविष्यति श्रीभागवत पीयूष पानाय रसलम्पटाः भवन्तश्च तथा शीघ्रम् आयात प्रेम तत्पराः नावकाशः कदाचित् चेत् दिनमात्रं तथापि तु सर्वथा आगमनं कार्यम् क्षणोत्रैव सुदुर्लभः एवम् आकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत् तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतम् विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थलम् शोधनं मार्जनं भूमेः लेपनं धातुमण्डनं गृहोपस्करमुद्धृत्य गृहकोणे निवेशयेत् अर्वाक् पञ्चाहतो यत्नात् आस्तीर्णानि प्रवेलयेत् कर्तव्यो मण्डपः प्रोच्चैः कदलीखण्डमण्डितः फलपुष्पदलैर्विश्वक् विधानेन विराजितः चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो बहु सम्पद्विराजितः ऊर्ध्वं सप्तैव लोकाश्च कल्पनीयाः सविस्तरम् तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीयाः प्रबोध्य च पूर्वं तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरम्
वक्तुश्चापि तदा दिव्यम् आसनं परिकल्पयेत् उदङ्मुखो भवेद् वक्ता श्रोता वै प्राङ्मुखस्तदा प्राङ्मुखश्चेद् भवेद् वक्ता श्रोता चोदङ्मुखस्तदा अथवा पूर्वदिग्ज्ञेया पूज्य पूजक मध्यतः श्रोतॄणामागमे प्रोक्ता देशकालादिको विदैः विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टान्त कुशलो धीरो वक्ता कार्योऽति निःस्पृहः अनेक धर्म विभ्रान्ताः स्त्रैणाः पाखण्डवादिनः शुकशास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिताः वक्तुः पार्श्वे सहायार्थम् अन्यस्थाप्यस्तथाविधः पंडितः संशयच्छेत्ता लोकबोधन तत्परः वक्त्राक्षौरं प्रकर्तव्यम् दिनादर्वाग्व्रताप्तये अरुणोदये सौनिर्वर्त्य शौचं स्नानं समाचरेत् नित्यं संक्षेपतः कृत्वा सन्ध्याद्यं स्वं प्रयत्नतः कथा विघ्न विघाताय गणनाथं प्रपूजयेत् पितॄन् संतर्प्य शुद्ध्यर्थं पितॄन् संतर्प्य शुद्ध्यर्थं पितॄन् संतर्प्य शुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत् प्रायश्चित्तं समाचरेत् प्रायश्चित्तं समाचरेत् मण्डलं च प्रकर्तव्यं मण्डलं च प्रकर्तव्यं मण्डलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा कृष्णम् उद्दिश्य मन्त्रेण कृष्णम् उद्दिश्य मन्त्रेण कृष्णमुद्दिश्य मन्त्रेण चरेत् पूजा विधिं क्रमात् चरेत् पूजा विधिं क्रमात् चरेत् पूजा विधिं क्रमात् प्रदक्षिण नमस्कारान् प्रदक्षिण नमस्कारान् प्रदक्षिण नमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिम् आचरेत् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत् संसार सागरे मग्नम् संसार सागरे मग्नम् संसार सागरे मग्नम् दीनं मां करुणानिधे दीनं मां करुणानिधे दीनं मां करुणानिधे कर्ममोह गृहीताङ्गम् कर्ममोह गृहीताङ्गम् कर्ममोह गृहीताङ्गम् माम् उद्धर भवार्णवात् माम् उद्धर भवार्णवात् माम् उद्धर भवार्णवात् श्रीमद्भागवतस्यापि 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 ततः पूजा प्रयत्नतः ततः पूजा प्रयत्नतः ततः पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या विधिना प्रीत्या कर्तव्या विधिना प्रीत्या कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूप दीप समन्विता धूप दीप समन्विता धूप दीप समन्विता ततस्तु श्रीफलं धृत्वा ततस्तु श्रीफलं धृत्वा ततस्तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरेत् नमस्कारं समाचरेत् नमस्कारं समाचरेत् स्तुतिः प्रसन्नचित्तेन स्तुतिः प्रसन्नचित्तेन स्तुतिः प्रसन्नचित्तेन कर्तव्या केवलं तदा कर्तव्या केवलं तदा कर्तव्या केवलं तदा श्रीमद्भागवताख्योऽयम् श्रीमद्भागवताख्योऽयम्
श्रीमद्भागवताख्योऽयम् प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ स्वीकृतोऽसि मया नाथ स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मुक्त्यर्थं भवसागरे मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयम् मनोरथो मदीयोऽयम् मनोरथो मदीयोऽयम् सफलः सर्वथा त्वया सफलः सर्वथा त्वया सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव दासोऽहं तव केशव दासोऽहं तव केशव एवं दीनवचः प्रोच्य एवं दीनवचः प्रोच्य एवं दीनवचः प्रोच्य वक्तारं चाथ पूजयेत् वक्तारं चाथ पूजयेत् वक्तारं चाथ पूजयेत् सम्भूष्य वस्त्रभूषाभिः सम्भूष्य वस्त्रभूषाभिः सम्भूष्य वस्त्रभूषाभिः पूजान्ते तं च संस्तवेत् पूजान्ते तं च संस्तवेत् पूजान्ते तं च संस्तवेत् शुकरूप प्रबोधज्ञ शुकरूप प्रबोधज्ञ शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद सर्वशास्त्र विशारद सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन एतत् कथा प्रकाशेन एतत् कथा प्रकाशेन मद् अज्ञानं विनाशय मदज्ञानं विनाशय मदज्ञानं विनाशय तदग्रे नियमः पश्चात् तदग्रे नियमः पश्चात् तदग्रे नियमः पश्चात् कर्तव्यः श्रेयसे मुदा कर्तव्यः श्रेयसे मुदा कर्तव्यः श्रेयसे मुदा सप्तरात्रं यथा शक्त्या सप्तरात्रं यथा शक्त्या सप्तरात्रं यथा शक्त्या धारणीयः स एव हि धारणीयः स एव हि धारणीयः स एव हि वरणं पञ्चविप्राणां वरणं पञ्चविप्राणां वरणं पञ्चविप्राणां कथाभङ्गनिवृत्तये 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 कर्तव्यं तैः हरेर्जाप्यं कर्तव्यं तैर्हरे जाप्यं कर्तव्यं तैर्हरे जाप्यं द्वादशाक्षरविद्यया 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 ब्राह्मणान् वैष्णवांश्चान्यान् ब्राह्मणान् वैष्णवांश्चान्यान् ब्राह्मणान् वैष्णवांश्चान्यान् ब्राह्मणान् वैष्णवान् च अन्यान् ब्राह्मणान् वैष्णवान् च अन्यान् तथा कीर्तनकारिणः तथा कीर्तनकारिणः तथा कीर्तनकारिणः नत्वा सम्पूज्य दत्ताज्ञः नत्वा सम्पूज्य दत्ताज्ञः नत्वा सम्पूज्य दत्ताज्ञः स्वयम् आसनम् आविशेत् स्वयम् आसनमाविशेत् स्वयमासनमाविशेत् लोकवित्त धनागार लोकवित्त धनागार लोकवित्त धनागार लोकवित्त धन आगार पुत्रचिन्तां व्युदस्य च पुत्रचिन्तां युधस्य च पुत्रचिन्तां युधस्य च कथाचित्तः शुद्धमतिः कथाचित्तः शुद्धमतिः कथाचित्तः शुद्धमतिः स लभेत्
फलम् उत्तमम् सलभेत् फलमुत्तमम् सलभेत् फलमुत्तमम् सूर्योदयम् आरभ्य सूर्योदयमारभ्य सार्ध त्रिप्रहरान्तकम् सार्धत्रिप्रहरान्तकम् वाचनीया कथा सम्यक् वाचनीया कथा सम्यक् वाचनीया कथा सम्यक् धीरकण्ठं सुधीमता धीरकण्ठं सुधीमता धीरकण्ठं सुधीमता कथा विरामः कर्तव्यो कथा विरामः कर्तव्यो कथा विरामः कर्तव्यो मध्याह्ने घटिका द्वयम् मध्याह्ने घटिकाद्वयम् मध्याह्ने घटिकाद्वयम् तत्कथाम् अनुकार्यं वै तत्कथामनुकार्यं वै तत्कथामनुकार्यं वै कीर्तनं वैष्णवैस्तदा कीर्तनं वैष्णवैस्तदा कीर्तनं वैष्णवैस्तदा मलमूत्रजयार्थं हि मलमूत्रजयार्थं हि लघ्वाहारः सुखावहः लघ्वाहारः सुखावहः लघ्वाहारः सुखावहः लघु आहारः सुखावहः लघु आहारः सुखावहः हविष्यान्नेन कर्तव्यो हविष्यान्नेन कर्तव्यो हविष्यान्नेन कर्तव्यो हि एकवारं कथार्थिना ह्येकवारं कथार्थिना ह्येकवारं कथार्थिना उपोष्य सप्तरात्रं वै उपोष्य सप्तरात्रं वै उपोष्य सप्तरात्रं वै शक्तिः चेत् शृणुयात् तदा शक्तिश्चेत् शृणुयात् तदा शक्तिश्चेत् शृणुयात् तदा घृतपानं पयःपानं घृतपानं पयःपानं घृतपानं पयःपानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखम् कृत्वा वै शृणुयात् सुखम् कृत्वा वै शृणुयात् सुखम् फलाहारेण वा भाव्यम् फलाहारेण वा भाव्यम् फलाहारेण वा भाव्यम् एकभुक्तेन वा पुनः एकभुक्तेन वा पुनः एकभुक्तेन वा पुनः सुखसाध्यं भवेद् यत्तु सुखसाध्यं भवेद्यत्तु सुखसाध्यं भवेद्यत्तु कर्तव्यं श्रवणाय तत् कर्तव्यं श्रवणाय तत् कर्तव्यं श्रवणाय तत् भोजनं तु वरं मन्ये भोजनं तु वरं मन्ये भोजनं तु वरं मन्ये कथाश्रवणकारकम् 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 नोपवासो वरः प्रोक्तः नोपवासो वरः प्रोक्तः नोपवासो वरः प्रोक्तः न उपवासो वरः प्रोक्तः न उपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्नकरो यदि कथा विघ्नकरो यदि कथा विघ्नकरो यदि सप्ताहव्रतिनां पुंसां सप्ताहव्रतिनां पुंसां सप्ताहव्रतिनां पुंसां नियमान् शृणु नारद नियमान् शृणु नारद नियमान् शृणु नारद विष्णुदीक्षा विहीनानां विष्णुदीक्षा विहीनानां न अधिकारः कथाश्रवे न अधिकारः कथाश्रवे नाधिकारः कथाश्रवे नाधिकारः कथाश्रवे नाधिकारः कथाश्रवे ब्रह्मचर्यम् अधः सुप्तिः ब्रह्मचर्यम् अधः सुप्तिः
ब्रह्मचर्यं मधस्तुतिः पत्रावल्यां च भोजनम् पत्रावल्यां च भोजनम् पत्रावल्यां च भोजनम् कथा समाप्तौ भुक्तिं च कथा समाप्तौ भुक्तिं च कथा समाप्तौ भुक्तिं च कुर्यात् नित्यं कथाव्रती कुर्यान्नित्यं कथाव्रती कुर्यान्नित्यं कथाव्रती द्विदलं मधु तैलं च द्विदलं मधुतैलं च द्विदलं मधुतैलं च गरिष्ठान्नं तथैव च गरिष्ठान्नं तथैव च गरिष्ठान्नं तथैव च भावदुष्टं पर्युषितं भावदुष्टं पर्युषितं भावदुष्टं पर्युषितं जह्यात् नित्यं कथाव्रती जह्यात् नित्यं कथाव्रती जह्यान् नित्यं कथाव्रती जह्यान्नित्यं कथाव्रती जह्यान्नित्यं कथाव्रती कामं क्रोधं मदं मानं कामं क्रोधं मदं मानं कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च मत्सरं लोभमेव च मत्सरं लोभमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं दम्भं मोहं तथा द्वेषं दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरयेच्च कथाव्रती दूरयेच्च कथाव्रती दूरयेच्च कथाव्रती दूरयेत् च कथाव्रती वेदवैष्णवविप्राणां 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 गुरु गोव्रतीनां तथा गुरुगोव्रतीनां तथा गुरुगोव्रतीनां तथा स्त्रीराजमहतां निन्दां स्त्रीराजमहतां निन्दां स्त्रीराजमहतां निन्दां वर्जयेत् यः कथाव्रती वर्जयेद्यः कथाव्रती वर्जयेद्यः कथाव्रती रजस्वलान् त्यज म्लेच्छ रजस्वलान्त्यज म्लेच्छ रजस्वलान्त्यज म्लेच्छ रजस्वल अन्त्यज म्लेच्छ रजस्वल अन्त्यज म्लेच्छ पतितव्रात्यकैस्तथा 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 पतितव्रात्यकैः तथा पतितव्रात्यकैः तथा द्विज द्विड् वेदबाह्यैश्च द्विजद्विड्वेदबाह्यैश्च द्विजद्विड्वेदबाह्यैश्च न वदेद्यः कथाव्रती न वदेद्यः कथाव्रती न वदेद्यः कथाव्रती सत्यं शौचं दयां मौनं सत्यं शौचं दयां मौनं सत्यं शौचं दयां मौनम् आर्जवं विनयं तथा आर्जवं विनयं तथा आर्जवं विनयं तथा उदारमानसं तद्वत् उदारमानसं तद्वत् उदारमानसं तद्वत् एवं कुर्यात् कथाव्रती एवं कुर्यात् कथाव्रती एवं कुर्यात् कथाव्रती दरिद्रश्च क्षयी रोगी दरिद्रश्च क्षयी रोगी दरिद्रश्च क्षयी रोगी निर्भाग्यः कर्मवान् निर्भाग्यः पापकर्मवान् अनपत्यो मोक्षकामः अनपत्यो मोक्षकामः अनपत्यो मोक्षकामः शृणुयाच्च कथामिमाम् शृणुयाच्च कथामिमाम् शृणुयाच्च कथामिमाम् शृणुयात् च कथामिमाम् शृणुयात् च कथाम् इमाम् अपुष्पा काकवन्ध्या च अपुष्पा काकवन्ध्या च अपुष्पा काकवन्ध्या च वन्ध्याया च मृतार्भका वन्ध्याया च मृतार्भका
वन्ध्याया च मृतार्भका स्रवद् गर्भा च या नारी गर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः तया श्राव्य प्रयत्नतः एतेषु विधिना श्रावे एतेषु विधिना श्रावे तद् अक्षयतरं भवेत् तदक्षयतरं भवेत् अति उत्तमा कथा दिव्या अत्युत्तमा कथा दिव्या अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटि यज्ञ फलप्रदा कोटि यज्ञ फलप्रदा 25வது ஸ்லோகத்திலிருந்து இது சேர்ந்து படிக்கலாம் पितॄन् सन्तर्प्य शुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत् मण्डलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा कृष्णमुद्दिश्य मन्त्रेण करेत् पूजा विधिं क्रमात् प्रदक्षिण नमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत् संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगं मामुद्धर भवार्णवात् श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूपदीप समन्विता ततस्तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरेत् स्तुतिः प्रसन्न चित्तेन कर्तव्या केवलं तदा श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव एवं दीनवचः प्रोच्य वक्तारं चाथ पूजयेत् सम्भूष्य वस्त्रभूषाभिः पूजान्ते तं च संस्तवेत् शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय तदग्रे नियमः पश्चात् कर्तव्यः श्रेयसे मुदा सप्तरात्रं यथा शक्त्या धारणीयः स एव हि वर्णं पञ्चविप्राणां कथाभङ्गनिवृत्तये कर्तव्यं तैर्हरेर्जाप्यं द्वादशाक्षर विद्यया ब्राह्मणान् वैष्णवांश्चान्यान् तथा कीर्तनकारिणः नत्वा सम्पूज्य दत्ताज्ञः स्वयमासनमाविशेत् लोकवित्तधनागार पुत्रचिन्ताम्युदस्य च कथाचित्तः शुद्धमतिः स लभेत् फलमुत्तमम् आसूर्योदयमारभ्य सार्धत्रिप्रहरान्तकम् वाचनीया कथा सम्यक् वीरकण्ठं सुधीमता कथा विरामः कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयम् तत्कथामनुकार्यं वै कीर्तनं वैष्णवैस्तदा मलमूत्रजयार्थं हि लघ्वाहारः सुखावहः भविष्यान्नेन कर्तव्यो ह्येकवारं कथार्थिनाम् उपोष्य सप्तरात्रं वै शक्तिश्चेत् शृणुयात् तदा घृतपानं पयःपानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखम् फलाहारेण वा भाव्यम् एकभुक्तेन वा पुनः सुखसाध्यं भवेद्यत्तु कर्तव्यं श्रवणाय तत् भोजनं तु वरं मन्ये कथा श्रवणकारकम् नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्नकरो यदि सप्ताहव्रतिनां पुंसां नियमान् शृणु नारद विष्णुदीक्षा विहीनानां नाधिकारः कथाश्रवे
ब्रह्मचर्यम् अधः सुप्तिः पत्रावल्यां च भोजनम् कथा समाप्तौ भुक्तिं च कुर्यान् नित्यं कथाव्रती विदलं मधुतैलं च गरिष्ठान्नं तथैव च भावदुष्टं पर्युषितं जह्यान् नित्यं कथाव्रती कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरयेच्च कथाव्रती वेदवैष्णव विप्राणां गुरु गोव्रतीनां तथा स्त्रीराजमहतां निन्दां वर्जयेद्यः कथाव्रती रजस्वलान्त्यजम्लेच्छ पतितभ्रात्यकैस्तथा द्विजद्विड्वेदबाह्यैश्च न वदेद्यः कथाव्रती सत्यं शौचं दया मौनम् आर्जवं विनयं तथा उदारमानसं तद्वत् एवं कुर्यात् कथाव्रती दरिद्रश्च क्षयी रोगी निर्भाग्यः पापकर्मवान् अनपत्यो मोक्षकामः शृणुयाच्च कथामिमाम् अपुष्पा काकवन्ध्या च वन्ध्याया च मृतार्भका स्रवद्गर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः एतेषु विधिना श्रावे तदक्षयतरं भवेत् अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञफलप्रदा श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा சத்குருநாத மகாராஜ் கி जय அடுத்த பாதி அத்தியாயத்தை நாளைக்கு செஷன்ல தொடர்ந்து கத்துக்கலாம். நாளைக்கு 7:30 to 8:30 காத்தால IST. ராதே ராதே. राधे 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 राधे।